بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پبلک پراپرٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل ساہی۔ ناظرین، ریئل اسٹیٹ ایک ایسا سیکٹر ہے جس سے متعدد الائیڈ انڈسٹریز کا روزگار جڑا ہوا ہے، جن میں سیمنٹ، سریا اور دیگر جو کاروبار ہے وہ شامل ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف ریئل اسٹیٹ کے منصوبوں کا آغاز کیا گیا، لیکن سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ان کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچایا جا سکا۔ گزشتہ دور کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں نئے پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا اور یوں لگتا ہے کہ یہ منصوبہ بھی سیاست کی نظر ہو چکا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات کریں تو جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار ہے، لیکن پاکستان کے چاروں صوبوں میں جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ آن لائن کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کا آپ نے سٹیٹس جاننا ہے تو آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ شہری بغیر آن لائن جانچ پڑتال کیے انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں اور بعد میں فراڈ کا یا نقصان کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ مجھے جوائن کیا اسٹوڈیو میں جناب ناصر گوندل، میری دوسری جانب تشریف فرما ہیں جناب سلمان علی اوان صاحب، آپ بیورو چیف ہیں پبلک نیوز اسلام آباد کے۔ سب سے پہلے میں ناصر گوندل صاحب کی طرف سے آؤں گا۔ ناصر صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس طرح ڈالر کی ایک اونچی اڑان ہے، ہر چیز اس سے متاثر ہو رہی ہے، تو ریئل اسٹیٹ کا شعبہ خاص کر اگر کنسٹرکشن کی بات کریں، کنسٹرکشن مٹیریل کی بات کریں، تو کتنا اس پر اثر آپ سمجھتے ہیں آ سکتا ہے اس سے؟ جی بہت شکریہ فیصل بھائی۔ دیکھیں، پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ کافی مہنگا ہونے کی وجہ سے آپ کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس میں کافی جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ جو ہے لوگوں کو نقصان بھی ہوا ہے۔ کنسٹرکشن کا جتنا مٹیریل ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا تھا، تو ابھی ایک بار پھر ڈالر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے 30-35 روپے جو ہے وہ بڑھا ہے، جس کی وجہ سے کنسٹرکشن کاسٹ جو ہے وہ پچھلے چند دنوں سے پھر جو ہے وہ کنسٹرکشن کاسٹ بڑھنا شروع ہو گیا۔ سریا آپ کا مہنگا ہو گیا، سیمنٹ مہنگا ہو گیا، اور بھی اس طرح کی جتنی بھی ہمارا را مٹیریل ہے وہ مہنگا ہو گیا۔ اور کنسٹرکشن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی پاکستان کے اندر پروجیکٹ شروع ہیں اور ان میں جو ہے وہ جن لوگوں نے بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اب بلڈر جو ہے وہ ایسا ایسا اپنا کام جو ہے وہ روکنا شروع ہو گئے ہیں۔ ناصر صاحب، وہ بلڈر جنہوں نے پہلے کے پروجیکٹ شروع کیے تھے اور ان کی بکنگ بھی پرانے ریٹ پہ کر دی ہوئی ہے، کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ کیا وہ ڈیلیور کر پائیں گے موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے؟ میرا خیال میں یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، جو بلڈرز ہیں، جو ڈیولپر ہیں، ان کے لیے کافی مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ کنسٹرکشن کاسٹ جو ہے وہ مہنگی ہوگی اور انہوں نے اولڈ ریٹس کے اوپر چیزیں جو ہے وہ سیل کی ہوئی ہیں، اور اگر اسی طرح پوزیشن رہی تو بہت سارے بلڈر جو ہیں وہ اپنا کام چھوڑ دیں گے اور لوگوں کی جمع پونجی جو ہے یہ نقصان ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جمع پونجی نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ سلمان صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک جو مڈل مین ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جمع پونجی کر کے پہلے پلاٹ لوں گا، پلاٹ کے بعد ایک پلان وہ بناتا ہے کہ میں نے ایک گھر بنانا ہے اور اس کے لیے ایک لمیٹڈ سے اس کے بجٹ ہوتا ہے۔ موجودہ جو صورتحال ہے، آپ یہ بتائیے گا کتنا مشکل ہو گیا ایک عام آدمی کے لیے اپنے گھر کے خواب کو پورا کرنا؟ جی، یہ خواب تو ویسے پہلے بھی خواب ہی تھا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ اب یہ خواب دیکھنا جو ہے نا یہ بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ جس طرح سے بھی گوندل صاحب نے بتایا کہ ڈالر مہنگا ہونے سے جو را مٹیریل ہے کنسٹرکشن کے لیے، چاہے وہ سریا ہو، سیمنٹ ہو، وہ مہنگا ہوگا، اور ڈیفینیٹلی یہ کاسٹ جو ہے اس کو عام آدمی جو کوئی اپنی تمام جمع پونجی جمع کر کے ایک چھوٹا موٹا گھر بناتا ہے، اپنی چھت بناتا ہے، اس کے لیے ڈیفینیٹلی یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے لاسٹ گورنمنٹ کے دور میں اس کنسٹرکشن کے بزنس کو، اس تمام تر جو خاص طور پر جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے اس کو بوم ملا تھا، گورنمنٹ کی پالیسیز بھی ایسی تھیں، اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز نے بھی بہت زیادہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر، تو اب بھی اگر گورنمنٹ چاہے تو اس کو ایک بار پھر بوسٹ جو ہے وہ مل سکتا ہے، لیکن جو ڈالر جس طرح سے فلکچویٹ ہو رہی ہے اس کی پرائس، اور اب جس طرح سے آسمان تک ہم کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ اپنی لمٹس تک جاری ہے، تو یہ بڑا مشکل ہوتا چلا جائے گا ایک عام آدمی کے لیے اپنا گھر بنانے کا خواب جو ہے وہ بالکل ایک ناممکنات میں سے ایک چیز۔ اصل میں سلمان صاحب، ڈالر کو اگر جب وہ اس کی ویلیو بڑھتی ہے، کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے، تو عام لوگوں کا تاثر ہوتا ہے کہ شاید مہنگائی آئے گی، شاید روزمرہ کی جو اشیاء ضروریہ ہے شاید وہ مہنگی ہوگی، لیکن جو یہ شعبہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے، بہت سارے جو الائڈ انڈسٹری ہے آپ کو پتہ ہے ریئل اسٹیٹ سے وہ جڑی ہوئی ہیں، تو یہ کتنا شعبہ آپ سمجھتے ہیں یہ ڈالر کی جو فلیکچویشن ہے اس سے متاثر ہوتا ہے؟ جی بالکل، جو روزمرہ اشیاء ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہو یا کوئی بھی سیکٹر ہو، کوئی بھی شعبہ ہو جو ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، ہماری انڈسٹریز ہیں، وہ سب کی سب ڈیفینیٹلی ہم ایک انٹرنیشنل مارکیٹ سے جڑے ہوئے ہیں، ایک انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، جو کہ ڈیفینیٹلی ڈالر پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ڈالر جیسی کرنسی جو ہے بڑی کرنسی ہے، پاکستان سمیت بہت سارے دنیا کے جو ممالک ہیں، تقریباً سارے ممالک جو ہیں وہ ڈالر پر ہی انحصار کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جب ڈالر جیسی کرنسی جو ہے وہ پاکستان میں اس کی پرائس بڑھے گی اور لوکل کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوگی، بلکہ ایک طرح سے آپ
آپ کہہ سکتے ہیں کہ क्रैश ہوती चली जाएगी डॉलर के मुकाबले में, तो हर शोबा ज़िंदगी जो है वो मुतासिर होगा. चाहे आपके और मेरे हाथ में हमने मोबाइल फ़ोन्स पकड़े हुए हैं वो मुतासिर होंगे, हमने जो कपड़े पहने हुए हैं अगर वो बाहर से आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं वो मुतासिर होंगे. तो एक एक चीज़ जो है वो मुतासिर हो सकती है. ऐसा नहीं हो सकता कि जो मार्केट है, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, चाहे वो करेंसी मार्केट है, वो इतनी ज़्यादा उतार चढ़ाव का शिकार हो, बेयकीनी का शिकार हो, एक इस किस्म की सिचुएशन हो, तो बाकी तमाम शोबे जो हैं वो फ्लक्चुएट करें. जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रोज़ आप जब ग्रॉसरी आइटम्स लेने जाते हैं तो हर चीज़ की प्राइस जो है वो अगले दिन जो है वो डिफरेंट होती है, सुबह डिफरेंट होती है, शाम को डिफरेंट होती है. तो डेफिनेटली हर शोबा जो है वो इस चीज़ से मुतासिर होता है और हो रहा है, हमारे मुसलसल होता सामने. चल रहा है. नासिर साहब आप फरमाइएगा, अब थोड़ा सा हम अगर कंपैरिजन करें एक साल जो पहले जो एक बिल्डिंग मटेरियल था उसका क्या रेट था और अभी कितना को फ़र्क आ चुका है, अगर परसेंटेज में जाए तो कितने % इजाफा हो चुका है? देखिए फैसल भाई, हमने एक कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू किया था आज से तकरीबन कोई 1.25 साल पहले की बात है, और उस वक्त हमने उसकी जो फिजिबिलिटी बनाई थी उस वक्त सरिया जो है वो आप हमें मिल रहा था 1,10,000 रुपये फी टन के हिसाब से, और बल्कि उससे पहले आपको पता है 75 के ऊपर बड़ा टाइम जो है 75,000 पर टन के हिसाब से बड़ा टाइम जो है वो रुका रहा है. फिर उस वक्त 1,10,000 रुपये के हिसाब से हमने फिजिबिलिटी बनाई, और हमने जब बिल्डिंग स्टार्ट की तो वही सरिया जो है वो हमें 1,75,000 रुपये फ़ी टन से लेके 2,30,000 रुपये फ़ी टन के हिसाब से हमें ख़रीदना पड़ा. और अभी सिर्फ 5 दिन के अंदर फिर उसके बाद थोड़ा सा रेट जो है वो 2 लाख रुपए के ऊपर आया था, और कुछ मंथ जो है वो उसके ऊपर उसने स्टैंड किया, लेकिन अभी फिर पिछले 4 दिन के अंदर जो है 20,000 रुपये फ़ी टन के हिसाब से जो है वो सरिया महंगा हो गया है. और ये अभी सरिया रुक नहीं है, नहीं रहा. सीमेंट है, उसके साथ आपकी ईंटें हैं, दीगर मटेरियल है, तो सरिया और ये सारी चीज़ें ओवरऑल कितने % इजाफा हो गया बिल्डिंग मटेरियल? देखिए उसमें फैसल भाई एक और चीज़ है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है. मिसाल के तौर पे 1% डॉलर महंगा हुआ है, उस परसेंटेज के हिसाब से अगर सरिया जो है वो 10,000 रुपये फ़ी टन के हिसाब से महंगा होना चाहिए, लेकिन हमारी जो स्टील मिल्स हैं उन्होंने जो है वो 30,000 20,000 रुपये जो है वो उस बहाना बना के कि डॉलर महंगा हो गया है. और इसी तरह जितने भी बाकी मटीरियल है कंस्ट्रक्शन के अंदर आपके यूज़ होते हैं, जिस तरह आपकी लकड़ी है और बहुत सारी इस तरह वुडन में चीज़ें जो ईंटें हैं, बहुत सारी दीगर चीज़ें हैं. लकड़ी ज़ाहिर वुड वर्क हर बंदे ने करवाना होता है, लकड़ी के अलावा स्टील वर्क वो भी महंगा हो गया, ईंटें महंगी हो गई. तो ये क्या चीज़ चक्कर क्या है, इस पे चेक एंड बैलेंस क्यों? तो ये चेक एंड बैलेंस जो है ये गवर्नमेंट ने देना है. हर जो भी इंडस्ट्री है उस हवाले से कोई ना कोई मैकेनिज्म मौजूद होता है, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से इसके ऊपर जो है वो पूरी तवज्जो नहीं दी जा रही. और हर जो मिसाल के तौर पे आप बिजली का सामान लेने जाएं तो वहाँ पे अगर 5 रुपए कोई चीज़ महंगी होनी थी उन्होंने 10 रुपए महंगी कर दी है. तो ये जो है ये गवर्नमेंट का बनता है. और इसी तरह अगर परसेंटेज से महंगाई बढ़ती रही, कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो महंगा होता रहा, तो मैं समझता हूँ जितना रेवेन्यू इस वक्त गवर्नमेंट को आ रहा है ये बहुत कम हो जाएगा. जितने भी इस वक्त आपको पता है पंजाब के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी जो है हमारी ऑनलाइन हुई है, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू आ रहा है. रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लेकिन सलमान साहब रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस नहीं है. जो जिसका दिल करता है वो रेट लगा लेता है. स्टील मिल ने अगर उसका सरिये की कीमत बढ़ानी है बढ़ा दी जाती है, और उसके बाद जो आगे एजेंट बैठे होते हैं वो अपनी कीमतें लगा लेते हैं. तो हुकूमत जहाँ दीगर हम कहते हैं जी आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है, यहाँ क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही? यही शायद इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि किसी भी शोबे में चेक एंड बैलेंस नहीं है. आटा, दाल, चावल या ग्रॉसरी की आप बात करें तो डेफिनेटली जब रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर मीडिया चीखता है, लोग चीखते हैं, तो शायद वो आवाज़ें गवर्नमेंट तक ज़्यादा पहुँचती हैं, और वो शायद मीडिया को या अखबारात को मुंह बंद करने के लिए या अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए उन चीज़ों पर तो एक्शन लिया जाता है. लेकिन जो ये चीज़ों को आप निशानदेही कर रहे हैं, चाहे वो रियल एस्टेट कारोबार हो, जैसे कि मैं पहले बात कर रहा था कि हमारी बहुत सारी जो दीगर मैन्युफैक्चरिंग है, कारखाने, वो सब इससे मुतासर होते हैं. और शायद किसी भी शोबे के अंदर जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, ना तो क्वालिटी कंट्रोल है ना ही प्राइस कंट्रोल है. तो ये तमाम चीज़ें जो डेफिनेटली गवर्नमेंट के देखने का काम है. गवर्नमेंट को चाहिए कि वैसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करे, और इंट्रोड्यूस करने के बाद उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो भी यकीनी बनाया जा सके, ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्राइस कंट्रोल जो है वो रहे. नो डाउट कि बहुत सारी जो अशिया हैं, चाहे वो रोज़मर्रा की अशिया हैं या जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल है, उसकी डिमांड बहुत बड़ा ये सेक्टर है, रियल एस्टेट का एक बड़ा सेक्टर है. लाखों लोग इससे रोज़गार आपको पता है कमा रहे हैं. अगर इसको ऐसे इग्नोर किया जाएगा तो आम बंदा पहले नहीं घर बना सकता, किराए पे पहले रह रहे हैं. अब तो जिस तरह सैलरीज उनमें कट लग रहे हैं मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ जगहों पे, बल्कि सैलरियाँ के रोज़गार लोगों के जा रहे हैं. तो घर बनाने का ख्वाब तो मेरा ख्याल है फिर पूरी ज़िंदगी किसी का पूरा तो दिखाई नहीं देता. आप क्या कहेंगे इसमें? जी बिल्कुल ऐसी ही बात है. और इसलिए लेकिन अब भी बुरी से बुरी तरीन सूरत हाल के अंदर भी अगर हम देखें, अगर हम माजी में जाएँ,
बात करें तो बहुत सारे मुल्कों में जहाँ पे जंगों के बाद तबाहियाँ आई, चाहे वो जापान हो चाहे वो यूरोप हो, वहाँ पे गवर्नमेंट्स ने इनिशिएटिव लिया और इस किस्म के प्लान्स और इस किस्म की मंसूबे जो हैं वो शुरू किए, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन को बूम मिला, जहाँ पर रोज़गार को बूम मिला। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको करते हुए, इकदामात करते हुए गवर्नमेंट जो है बुरे से बुरे तरीन सूरत हाल के अंदर भी इनिशिएटिव ले तो नई जान जो है वो पड़ सकती है, लेकिन उसके लिए एक अज़्म होना चाहिए। और उसके साथ जो बार बार हम चीज़ बात कर रहे हैं वो है चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो रोज़मर्रा की अशिया की प्राइस हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन मटीरियल हो। चेक एंड बैलेंस जब तक नहीं होगा किसी भी निज़ाम में, पॉलिसीज़ मौजूद बेशक हों, लेकिन जब तक उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तो ये तमाम तर इक़दाम जो हैं वो बेकार होंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो एक बोल्ड डिसीजन ले और इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए एक रियल स्टेट का जो सेक्टर है उसको उसके सर पर हाथ रखे, उसकी सरपरस्ती करे, ताकि यहाँ से एक चीज़ जो है वो जनरेट हो और उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो ग्रास रूट लेवल तक भी जाए। नासिर साहब, आप फरमाइएगा, जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, आप मुझे बता रहे थे आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किया, आपने एक एस्टिमेट लगाया, आपको लगता है कि एक तो चलें उसमें तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और डिलीवर करना ना करना वो भी ज़ाहिर है अब मुश्किल आपको दिखाई देता है, जिस तरह की मुआशी सूरत चल रही है, जिस तरह डॉलर की सूरत चल रही है। तो आप क्या समझते हैं ये चीज़ें, अगर डॉलर मज़ीद बढ़ता जाएगा तो आपके लिए मज़ीद कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना आपके लिए भी ख्वाब नहीं बन जाएगा? देखिए फैसल भाई, हमने साल सवा साल पहले जब कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर आए थे तो उस वक्त हमने 5 से 6 प्रोजेक्ट्स जो हैं कमर्शियल हमने पाइपलाइन के अंदर जो है उनके ऊपर वर्क करना शुरू किया, लेकिन एक हमने शुरू किया था। और मैं समझता हूँ अगर वो उसके अंदर जो पहले डॉलर महंगा हुआ था और कंस्ट्रक्शन कास्ट जो है बढ़ी है, उसमें जो बिल्डर्स का जो हमारा मार्जिन था वो ख़त्म हो गया था। हम लोग अभी कास्ट टू कास्ट पे आ गए थे, लेकिन अभी फिर डॉलर महंगा होने से हमें जो है वो टोटली उसके अंदर नुकसान पे चलेंगे। डे बाई डे जितना डॉलर जो है कंस्ट्रक्शन कास्ट महंगी होगी उतना हमें नुकसान होता नज़र आ रहा है। लेकिन हम लोग एक प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे जो है वो हम लोग कंस्ट्रक्शन से तौबा करेंगे, क्योंकि कोई बिल्डर भी अपनी जेब से जो है वो पे करके अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं करता। सलमान साहब, बिल्डर्स तो तौबा करने पे आ गए हैं, आपको हालात क्या दिखाई देते हैं? बिल्डर्स तो अब तौबा करने पे आ गए हैं, वो कह रहे हैं हमें तो प्रोजेक्ट दिखाई देता, कंप्लीट होता दिखाई नहीं देता, प्रॉफिट मार्जिन ख़त्म कर दिया, अब डिलीवर करना वो भी ख्वाब बनता जा रहा है क्योंकि चीज़ें कंट्रोल में नहीं रह रही। तो क्या आप क्या कहेंगे इस पर? इसमें मेरे ख्याल है कुछ कहने के लिए अल्फाज तो नहीं है। नो डाउट पूरी दुनिया जो है इस क्राइसिस से गुजर रही है। बहुत सारी जो मईशतें हैं उनके बारे में IMF जैसे ने प्रेडिक्शन की है कि चाइना जैसी बड़ी मईशत जो है वो अगले साल उस तरह से ग्रो नहीं करेगी जिस तरह से करनी चाहिए। लेकिन वंस अगेन फिर यही बात आती है कि जो गवर्नमेंट्स हैं मुल्कों की वो बहुत सारे इकदामात ले रही हैं। तो पाकिस्तान में भी कंस्ट्रक्शन का शोबा जो है, रियल स्टेट का शोबा जो है, हम गुज़िश्ता कम कम 20 साल से देखते चले आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा शोबा बन चुका हुआ है। ख़ासतौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये एक सरमायाकारी का ज़रिया है और पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है कि बाहर से जब पैसे आते हैं, डॉलर आते हैं, तो मुल्क को फ़ायदा होता है। तो लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, वंस अगेन मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर इसरार कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है उसको आगे आना चाहिए और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इस तरह के इकदाम करने चाहिए ताकि ये शोबा रिवाइव हो और इसको रेगुलेट किया जा सके। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। लेकिन नासिर साहब, हम दूसरी जानिब वो ये भी देखते हैं कि हाउसिंग प्रोजेक्ट जितने भी आते हैं दिन आ रहे हैं, अभी भी आने का सिलसिला रुका नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि हाउसिंग सोसाइटी आते हैं और जितने भी अब चारों सूबों में जाएं उनका तमाम रिकॉर्ड अब ऑनलाइन कर लिया गया है। उसके बावजूद शहरी जहमत नहीं करते कि किसी भी सोसाइटी को लेने से पहले उसकी तस्दीक करें, कोई प्लॉट लेने से पहले कोई छानबीन करें, ऑनलाइन देखना भी वो गवारा नहीं करते। तो बाद में नुकसान का रोना ये कोई जस्टिफाई चीज़ है? देखिए फैसल भाई, हमने ना एक शो के अंदर डिस्कस की थी कि एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर बिल्डर ने जो है वो फ्रॉड किया और उसने लोगों को जो है वो सब्ज़ बाग दिखा के बहुत ज़्यादा लालच दे के जो है उसने पैसा इकट्ठा किया। मिसाल के तौर पे उसने कहा कि जी अभी बिल्डिंग चूँकि मुकम्मल नहीं हुई और आप सारी पेमेंट करें और नेक्स्ट मंथ से जो है वो आपको उसका रेंट मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे लोग जो है उस लालच के अंदर आके उन्होंने अपनी जमा पूंजी जो है वो लुटा दी और बल्कि वो करोड़ों में नहीं था, अरबों में जो है वो फ्रॉड था। और इसी तरह रियल स्टेट सेक्टर के अंदर और बहुत सारी मिसालें हो रही हैं जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो लालच के अंदर आके कि जी हमें प्लॉट बहुत सस्ता मिल रहा है, हमें प्लॉट किस्तों के ऊपर मिल रहा है, और इस तरह की बहुत अच्छी जो एडवर्टीजमेंट है वो देख के जो है वो लोग जो है अपनी जमा पूंजी जो है वो लुटा रहे हैं। लेकिन जहमत नहीं करते, किसी अच्छे रियल स्टेट एडवाइज़र से मशवरा नहीं करते,
ऑन ग्राउंड जो है वो विजिट नहीं करते कि जहाँ पे ये हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ पे साइट के ऊपर इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास लैंड अब तो सारा डेटा ऑनलाइन मौजूद होता है। आप आरडीए का उठा लें, सीडीए का उठा लें, एलडीए का उठा लें, केडीए का उठा लें, या आप किसी भी अथॉरिटी का उठा लें, सारा डेटा ऑनलाइन मौजूद होता है। उसमें कानूनी गैर कानूनी सोसाइटी वाज़े तौर पे बताई जाती है। तो शहरियों को क्यों अभी तक ये शहरी इस दौर में भी लाइल दिखाई देते हैं? देखिए फैसल भाई, इसमें ना बहुत सारी कोताही जो है वो गवर्नमेंट के इदारों की तरफ से भी है। बहुत सारे ऐसे भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पास लैंड भी मौजूद है, साइट के ऊपर डेवलपमेंट का प्रोसेस भी अच्छा चल रहा है और वो लोगों को डिलीवर भी करना शुरू हो गए, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट के इदारे जो हैं उनको प्रॉपर एनओसी जारी नहीं कर रहे, प्रॉपर उनको अपने जो इनका लीगल दायरा कार है उसके अंदर नहीं लेके आ रहे। डबल नुकसान हो रहा है। एक तो लोगों को नुकसान इस वजह से हो रहा है कि उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास एनओसी नहीं है, लोग वहाँ पे घर बनाएंगे तो उनको बिजली के मीटर का भी इशू है, गैस के मीटर का भी इशू है, और भी बहुत सारे इस तरह के मसाइल जो हैं वो लोगों को वहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को उसका दूसरा जो नुकसान है वो ये है कि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आना था उसकी अलाटमेंट के ऊपर, उसकी ट्रांसफ़र के ऊपर, लोगों को जो प्रॉपर्टी वहाँ पे सेल हो रही है उसके ऊपर जो टैक्स आना था वो गवर्नमेंट को नहीं आ रहा। तो ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को थोड़े से अपने कवानीन जो कि पिछले 50 साल से या 70 साल से पुराने जो हमारे कवानीन हैं, बाइलाज हैं, उनको थोड़ी बहुत नरमी करके इन हाउसिंग प्रोजेक्ट को जो है वो कानूनी दायरा कार के अंदर लेके आएँ, ताकि लोग जो है जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी सेफ हो जाएं और गवर्नमेंट को भी अच्छा रेवेन्यू, अच्छा उसको रेवेन्यू जनरेट। सलमान साहब, हाउसिंग प्रोजेक्ट आप कोई भी देखते हैं, मुतलका अथॉरिटीज़ के जो वेबसाइट है उस पर वाज़े तौर पे लिखा होता है कि ये गैर कानूनी है, ये कानूनी नहीं है, ये कानूनी है, तमाम उसका रिकॉर्ड पड़ा होता है। आप देखें किसी भी वेबसाइट को उठा के उस पर ये भी बताया जाता है, इतनी तफसील होती है कि एक तो उसका मैप भी होता है वहाँ पे और साथ बताया जाता है कि इसने कितने कनाल पे इसका एनओसी है। क्यों लोग देखना पसंद नहीं करते और उसके बाद फिर कहते हैं जी हमें नुकसान हो गया, हम लुट गए, हमने जमा पूंजी हमने लुटा दी। ये क्या क्यों लोग इतनी ज़हमत नहीं करते इसको देखने की? अब मेरे ख्याल में इस मामले के दो पहलू हैं। एक तो जो ख़रीदार है या सार्फिन है, एक तो उनकी कोताही भी है कि आप देखें, छोटी सी मिसाल है कि जब हम बकरीद के दिनों में बकरे ख़रीदने जाते हैं, जानवर ख़रीदने जाते हैं, तो उसकी अगली पिछली नस्ल जो है वो पूछी जाती है, उसके दांत चेक किए जाते हैं, हर चीज़ जो हम उसको नाप तोल कर ख़रीदते हैं। तो डेफिनेटली आजकल के दौर में जबकि हम कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन का दौर है, डिजिटल दौर है, हर चीज़ जो है जैसे कि आपने भी कहा कि ऑनलाइन अवेलेबल है, तो डेफिनेटली शहरियों को चाहिए कि वो उसको जो डाटा जो अवेलेबल है ऑनलाइन वो खोल कर देखें और इसको एक आदत बनाएं। अच्छा ये बताइएगा सलमान साहब, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि फ़लाँ हाउसिंग सोसाइटी कानूनी है गैर कानूनी है, ज़रा आरडीए का डेटा खोलिएगा, तो आपने कहा इसमें तो बहुत सारे पेजेस हैं, मैं कैसे चेक करूं? तो ये क्या एक्सरसाइज है? क्यों मतलब हम कन्नी को उतराते हैं और हम बात कोशिश करते हैं कि या अल्लाह ये हमारी जगह कोई देख ले और बाद में फिर नुकसान उठा लेते हैं। जी बिल्कुल, यही जो मसला है वाकई हम सबकी शायद उस तरह से आदत अभी डेवलप नहीं हुई। हमारे जो बाद में आने वाली जनरेशन है शायद वो ज़्यादा शार्प हो, लेकिन ये बिल्कुल इसको आदत बनाना चाहिए कि हम बहुत सारी चीज़ें जब ख़रीदते हैं उसका लेबल चेक करते हैं, उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं। तो डेफिनेटली जब इतनी बड़ी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं, और बहुत सारे मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत सारे लोग जो है इतनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो सेविंग उसमें सारी इन्वॉल्व करते हैं। जी बिल्कुल जा रहे होते हैं। तो डेफिनेटली जो अवेलेबल डाटा है उसको चेक करना चाहिए। और इसके साथ ही जो हम बात करें गवर्नमेंट साइड की, तो गवर्नमेंट को भी जो हम रेगुलराइज करने की बात कर रहे हैं, तो ये अवेयरनेस कैंपेन्स जो है वो मुख्तलिफ जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट की जानिब से भी सामने आनी चाहिए कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। और दूसरी चीज़ जैसे कि अभी नासिर साहब भी मेंशन कर रहे थे कि इदारे मौजूद हैं, उनके जो रेगुलेशंस जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ भी है कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉ मेकिंग होती है, हर ज़िंदगी के हर शोबे के हवाले से कानून मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है। और अगर इम्प्लीमेंटेशन होती भी है तो वो आपको, मुझे या आम शहरियों को सहूलत देने के लिए नहीं होती, बल्कि हम सबको टाइट करने के लिए होती है। तो ये बड़ा जानबूझ कर डाली जाती हैं ताकि लॉ जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम हो और लोग जो हैं वो टेढ़े रास्ते से अपना सीधा काम जो है वो करवा सकें। बिल्कुल नाज़रीन, कानून तो सारे मौजूद हैं, लेकिन उसमें जानबूझ के ऐसी चीज़ें बना दी जाती हैं, डाल दी जाती हैं कि ताकि शहरी लीगल तरीके की बजाय शॉर्टकट को तलाश करें। सलमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन यहाँ का वक्त हुआ है और मिलते हैं ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एनसीसी मार्केटिंग के हवाले से ये खसूसी रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एनसीसी मार्केटिंग के सीईओ जनाब हमैर सिद्दीकी साहब से, और आपको बताएंगे कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर से ये कामयाब बिजनेसमैन कैसे बने।
पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केटिंग का रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी तरह एनसीसी मार्केटिंग पाकिस्तान के चंद बड़े मंसूबों के साथ मिलकर काम कर रही है। नाइस कम्युनिटी क्रिएटर मकामी और बैनुल अक़वामी सारिफीन को जमीन जायदाद में सरमायाकारी करवाने और उसे महफूज बनाने में मसरूफ़ अमल है। साल 2013 में होराइजन एसोसिएट के नाम से शुरू होने वाली मार्केटिंग एजेंसी, जिसका नाम साल 2022 में तब्दील करके एनसीसी मार्केटिंग किया गया। हमारा एक अपना प्रोजेक्ट है मॉडल विलेज एग्रो फार्म हाउस के नाम से नीलादुला में, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पहला फेज़ है वो कंप्लीट हो चुका है। एनसीसी मार्केटिंग के पास प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और रियल एस्टेट कंसल्टेंसी सर्विसेज में 8 साल का तजर्बा है। मार्केटिंग में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसे ई मीडिया और वेब पर मबनी मीडियम मास कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा सारिफीन तक पहुंचने के लिए काम कर रहा है। एनसीसी मार्केटिंग का मशहूर मंसूबा एग्रो फार्म का मंसूबा है, जो प्लानर और डेवलपर्स की सरबराही में मुकम्मल हुआ है। एनसीसी के सीईओ प्रिंस उमैर सिद्दीकी और मैनेजिंग डायरेक्टर रिजवान खान, डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट अली असगर गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से रियल एस्टेट के जाने पहचाने नाम हैं। पहले ये होता था कि जी डाउनटाउन का कॉन्सेप्ट था, शहर के अंदर शहर आबाद हो रहे थे, लेकिन अभी ये देखने में आ रहा है कि लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि शहरों से बाहर जाके डाउनटाउन का कॉन्सेप्ट छोड़कर बाहर ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा M2 मोटरवे पे, चंकरी इंटरचेंज पे कई नई सोसाइटीज़ ने बनी हैं। इसी तरह हमने भी मॉडल विलेज एग्रो फार्म्स मोटरवे के ऊपर M2 नीलादुला इंटरचेंज के करीब लॉन्च किए हैं। इस वक्त हम एनसीसी मार्केटिंग में अपने स्टाफ और हम लोग मिल के जो सबसे अच्छी सोसाइटीज़ हैं इस्लामाबाद की, उसमें हम पिछले 3-4 सालों से एक बहुत अच्छे लेवल का काम कर रहे हैं। एनसीसी मार्केटिंग तवील मुद्दती ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए मौजूदा सारिफीन को 100% इत्मीनान फराहम करने की कोशिश करती है। उमैर सिद्दीकी साहब का आपको बताएं कामयाब बिजनेसमैन है और इन्होंने अपने जो कैरियर का आगाज़ एक कंप्यूटर ऑपरेटर से किया, कामयाब बिजनेसमैन बने, अब अपनी ज़ाती कंपनी चला रहे हैं और साथ अपना एक ज़ाती प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। सर वेलकम टू द शो। मैं आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ, कैसे आपने अपने कैरियर का आगाज़ किया और कंप्यूटर ऑपरेटर फिर अपना कारोबार का आगाज़ किया, ज़ाती कंपनी चला रहे हैं। ज़रा अपना जो बिगनिंग है, जो आगाज़ है, वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहिब साहब, आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया इधर और अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। सर 2005 में मैंने एज आ कंप्यूटर ऑपरेटर ज्वाइन किया था एक प्राइवेट कंपनी को जो रियल एस्टेट ही की थी और उधर मेरी सैलरी 5000 थी और 2013 में 32,000 पे एज एन एडमिन ऑफिसर मैंने वहाँ से छोड़ा और उसके बाद मैंने अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाई होराइजन एसोसिएट्स के नाम से 2013 में। बिल्कुल ठीक है। और वो भी रियल एस्टेट का काम करती थी। 2018 तक मैंने होराइजन एसोसिएट्स के नाम से एज अ रियल्टर काम किया। बिल्कुल ठीक है। 2018 में जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मुझे एक नाम याद आया कि उन्होंने कोई 2000 में एक एनसीसी के नाम से स्कूल बनाया हुआ था कि उसको जिंदा करता हूँ, जिंदा करते हैं। तो मैंने एनसीसी मार्केटिंग के नाम से 2018 में काम शुरू किया और टिल नाउ वही काम कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ एनसीसी मार्केटिंग के साथ एक मैंने फर्म रजिस्टर्ड कराई। जो मेरे पार्टनर थे वो क्योंकि कंस्ट्रक्शन में उनकी महारत थी, डेवलपमेंट में, तो एनसीसी प्लानर्स एंड डेवलपर्स का, तो उसी के प्रोजेक्ट फिर हमने मॉडल विलेज एग्रो फार्म्स एक बनाया जो पिछले 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से पाया तकमील की तरफ चल रहा है। उमैर साहब, जब कोई अपने कैरियर का आगाज़ करता है तो आपने क्या सोचा था? आपने रियल एस्टेट का शोबा ही उसको सिलेक्ट करना है, जैसे आप कंप्यूटर ऑपरेटर थे कहीं पे और फिर आपने एकदम रियल एस्टेट में आ गए। आपने वालिद साहब की वो चीज़ को याद रखा कि उन्होंने स्कूल का नाम रखा था एनसीसी, तो आप स्कूल के बिज़नेस की तरफ क्यों नहीं गए? अच्छा, जिस काम में मैं ये समझता हूँ कि आप वो कारोबार करें जिसमें आपका पैशन हो, क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब ही एज उस मार्केट में थी जो रियल एस्टेट की थी। तो मेरा वो पैशन जो है, मेरा काम जो है, मेरा पैशन बन गया रियल एस्टेट का और मैंने उसी को फिर कंटिन्यू करना चाहा। और मैं अब जो यंगस्टर्स हैं उनको भी यही एडवाइस करता हूँ कि आपका जो भी काम करें, जो भी बिज़नेस स्टार्ट करें, वो आपका पैशन होना चाहिए, आपका जुनून होना चाहिए, तो आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। नासिर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप ख़ुद भी, आपका बड़ा एक पॉजिटिव रोल है, आपने भी बड़ा एक छोटे से स्टेप लिया और उसके बाद कामयाब आप भी बिजनेसमैन बने। तो मेरे सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें आ रही हैं। तो वो लोग जो बात करते हैं कि पाकिस्तान में तो वाकई नहीं है, हम अब्रॉड चले जाएंगे, वहाँ जाके अपना मुस्तकबिल बनाएंगे। आपने उमैर साहब यहाँ पे अपना मुस्तकबिल बनाया और करके दिखाया। तो ऐसे नौजवान जो है, जो उनको आप एक तो मैसेज क्या देंगे और दूसरा उमैर साहब से आप क्या सवाल करेंगे? देखिए फैसल भाई, घर बैठ के रोज़ाना प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल फील्ड में जानना पड़ता है। और जो लोग भी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी
مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی محنت کرتے ہیں, ڈائریکشن لیتے ہیں اور سیکھتے ہیں کام, تو وہ آنے والے ٹائم میں 2 سال کا ٹائم لگتا ہے, 5 سال کا یا 10 سال کا, وہ بزنس سیکھ بھی جاتے ہیں. اور بزنس میں سمجھتا ہوں کہ جاب سے بہت اچھا ہے, اور بزنس کے اندر جو تھوڑا آپ کو پتہ ہے مشکلات بہت ساری ہوتی ہیں, بعض اوقات آپ کو نقصان بھی ہوتے ہیں, پروفٹ بھی ہوتے ہیں. اور جو لوگ مستقل مزاجی کے ساتھ بزنس کو, یا جیسے عمیر بھائی نے بات کی ہے کہ جنون کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں جس میں آپ کا شوق بھی شامل ہو, آپ کا جنون بھی شامل ہو, اس میں آپ کی کامیابی جو ہے وہ یقینی ہے. میں سمجھتا ہوں عمیر بھائی, جس طرح میں بڑے ٹائم سے عمیر بھائی کے ہم دوست بھی ہیں اور ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں, ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ جو ہے اس میں پڑھے لکھے لوگوں کا آنا جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے, چونکہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ایک بہت بڑی آپ کی پاکستان کی انڈسٹری ہے. اس کے اندر جو ہے وہ پرانے لوگ جو جس طریقے سے بزنس کر رہے تھے اس کو نئے جدید دور کے اوپر لے کے آنے کے لیے پڑھے لکھے دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اور ساری مارکیٹنگ کمپنی جو ہے وہ. اور میں عمیر بھائی سے یہی اس وقت ڈسکس کریں گے ہم لوگ, جو اس وقت ریئل اسٹیٹ کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو پتہ آئی ہیں, ریئل اسٹیٹ کا بزنس بہت زیادہ سلو ہے. تو اس وقت ایک ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی جو ہے اس کو سروائیو کرنے کے لیے کون سے چیلنج جو ہیں وہ اس وقت درپیش ہیں, اور ان سے کیسے جو ہے وہ ہم لوگ نمٹ سکیں, تاکہ ہمارے ساتھ جڑے جو کلائنٹس ہیں ان کے لیے ہم سروسز جو ہے وہ اپنی جاری رکھ سکیں. جی بتائیے گا اس حوالے سے کہ ایک مشکل جو دور چل رہا ہے عمیر صاحب, آپ کو لگتا تھا کہ ایسا کبھی مشکل دور آئے گا؟ کیونکہ آپ نے جب سٹرگل کا آغاز کیا تو آپ کو لگ رہا تھا کہ شاید کوئی بڑا آسان کام ہے ریئل اسٹیٹ کا, لیکن اب جو حالات چل رہے ہیں تو کتنی مشکلات آپ کو دکھائی دے رہی ہیں؟ اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشکلات تو ہر وقت پیش آتی رہتی ہیں ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ میں اور ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری میں, لیکن جو یہ حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں اس میں ذرا یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہمیں محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے اور کام تھوڑا ہے. لیکن اگر آپ کام کرنے والے ہیں تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر وقت کام ہے. بہت سی نئی سوسائٹیز آتی رہتی ہیں, اور جو لیگل ہوں اور جو آپ کا پیشن ہے نا, تو اس میں آپ کام کر سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ مطلب آپ کے پاس کام نہیں. ناصر گوندل صاحب نے جس طرح ابھی بھی ان کا مطلب بڑے ورٹیکل پروجیکٹس چل رہے ہیں, اور ابھی بھی اس وقت ان کا بڑا اچھا کام ہے. تو یہ جو تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہوتا ہے اس میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے, جو وقتی ہماری انڈسٹری میں ان ہوتے ہیں کہ آئے پیسہ کمایا اور نکل گئے, تو جس وقت ڈاؤن فال آتا ہے تو وہ نکل جاتے ہیں, اور جو ٹھہراؤ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ مستقل مزاجی سے چلتے رہتے ہیں. پہلے شاید اگر 1000 لوگ اگر کام کر رہے تھے اس انڈسٹری کے ساتھ, اور اس وقت اگر 100 کر رہے ہیں تو کلائنٹس تو اتنے ہی ہیں 100, تو جو کر رہے ہیں اپنی مستقل مزاجی کے ساتھ ان کو مل رہے ہیں. لیکن عمیر بھائی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے یہ لوگ نئے آتے ہیں ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ یار ناصر صاحب بڑا اچھا کما رہے ہیں, آپ بڑا اچھا کما رہے ہیں, ہم بھی بس پہلے دن سے کمانا شروع کر دیں. شارٹ کٹ والے تو شارٹ کٹ والے بعد میں اب اس بزنس سے ہم دیکھنے جاتے بھی دکھائی دے رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو مستقل مزاجی کے ساتھ ایک تو آنا چاہیے, دوسرا تھوڑا صبر نہیں کرنا چاہیے کہ ظاہر ہے آپ نے بھی وقت دیا, آپ نے بھی وقت دیا, ایسے تو راتوں رات تو ساری چیزیں نہیں آ گئی نا. سر پاکستان میں ایک بڑی وہ ہے کہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ فوراً ناصر گوندل یا عمیر صدیقی تو بننا چاہتا ہے, لیکن کبھی بھی ان کی پیچھے کی ہسٹری نہیں دیکھتا کہ انہوں نے محنت کتنے عرصے پہلے کی. ناصر گوندل صاحب نے 20 سال محنت کی اور آج اس مقام پہ پہنچے ہیں. میری اپنی لائف میں 17 ایئرس پریکٹیکل لائف کے ہو چکے ہیں. تو وہ ہمارے پیچھے کی ہارڈ شپ کو نہیں دیکھنا چاہتے, وہ پیشن کو نہیں دیکھنا چاہتے, وہ ہارڈ ورک کو نہیں دیکھنا چاہتے, اور وہ فوراً چاہتے ہیں کہ وہ فوراً ناصر گوندل یا عمیر صدیقی بن جائے. تو پیچھے والی جب تک ہم اپنی ہسٹری کو نہیں دیکھیں گے, جو بھی کامیاب شخص ہے, اور جس طرح دنیا میں جتنے بھی بزنس مین ہیں بڑے, ان کا کوئی بھی بزنس ہو آئی ٹی کا, لیکن ان کا سیکنڈ بڑا بزنس کون سا ہے, وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں, چاہے وہ بل گیٹس ہی کیوں نہ ہو. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا این سی سی سے کیا بنتا ہے یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے, کیسے آپ نے والد صاحب نے کہہ دیا این سی سی کیا, اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ سر این سی سی میرے والد صاحب نے رکھا تھا, این سی سی اسکول آف ایکسیلنس. تو این سی سی کا مطلب تھا نائس کمیونٹی کریٹرز, اچھا معاشرہ تشکیل دینے والے. اور میرے خیال میں ناصر بھائی اور خوبصورت نام ہے جی. ہم تو این سی سی دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں این سی سی کے ٹیسٹ ہیں, یہ کیا ہے. یہ سچی بات ہے, میں نے بھی فرسٹ ٹائم جو ہے نا نہیں دیکھیں بڑا زبردست. آپ اور سیکنڈلی آپ نے جب والد صاحب کی دعاؤں کے ساتھ بزنس کا آغاز کیا, تو مجھے اپنی تھوڑی سی اسٹرگل کا بتائیے گا, کتنی مشکلات آپ نے شروع میں برداشت کی اور پھر مستقل مزاجی کے ساتھ آپ چلتے رہے, تھوڑی سا مشکلات کا اسٹرگل کے حوالے سے. سر جی جس وقت میں نے اسٹارٹ لیا اپنے بزنس کا ہوریزن ایسوسیٹس کے نام سے, الحمدللہ بہت اچھا کام تھا, بڑا ہم نے 3-4 سال عروج دیکھا. 2017 میں آ کے کچھ ایسے فیملی پرابلمس آئے جس کی وجہ سے میں مارکیٹ سے انٹچ ہوا, اور مجھے پہ بڑا ڈاؤن فال آیا. میں نے اپنے سیکنڈ وہ بھی کیے بزنس اسٹارٹ کیے, لائک بوتیک بنائی, ہوٹل بنایا.
लेकिन क्योंकि वो मेरा पैशन नहीं था, मैंने बताया जो भी काम करे पैशन से करे, वो मेरा पैशन नहीं था, उसमें मुझे लॉस हुआ। उसमें आप ये आपके माइंड में था आप पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने, पैशन नहीं था, लेकिन आपका पैशन है। लेकिन अब मुझे एक एहसास हुआ कि आप कोई भी काम करें, पैसा हर काम की बाय प्रोडक्ट होनी चाहिए। आप किसी भी नौजवान से पूछें कि आप रियल एस्टेट में क्यों आए, तो वो आपको बताएगा कि मैंने पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लेकिन और उसे कम ये वक्त में कमाना है। जी, उसे ये नहीं पता कि पैसा एक बाय प्रोडक्ट है किसी भी काम की। अगर आप काम करना जानते हैं, आपका पैशन आपका काम है, आपका जुनून है, तो आपको पैसा मिलना ही मिलना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आगे ये जो नई नौजवान नस्ल आ रही है, बहुत से नौजवान जो है रियल एस्टेट से वाबस्ता हो रहे हैं, तो जो भाग रहे हैं, जो दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं, उनको मैसेज क्या देंगे आप? सर वो उनका असल में ना पैशन नहीं है, या उनका एक लाइन एंड लेंथ नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि जिनकी लाइन एंड लेंथ प्रॉपर्टी या अपनी मोहब्बत काम से जिसकी हो, वो कोई भी काम छोड़ के नहीं भागता। इस वक्त भी हम जुड़े हुए हैं अपने काम से और बहुत एग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं। नासिर गोंदल साहब के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो पहले 10% तरक्की कर रहे थे, अभी वो 100 टाइम्स उन्होंने बढ़ा दी हैं। अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप? सर मेरा अपना ज़ाती प्रोजेक्ट जो है इस वक्त मॉडल विलेज एग्रो फार्म्स का चल रहा है, ठीक है, जो नीला दुल्ला इंटरचेंज के पास है। और मैं उधर अपने सिर्फ एक ज़ात के लिए मैं एक ज़मीन ख़रीदने गया, लेकिन वहाँ जाके एहसास हुआ कि लोगों को एक छोटे यूनिट से निकाल के 5 मरला 10 मरला से निकाल कर उसी कीमत में अगर मैं 4 कनाल 5 कनाल 10 कनाल ज़मीन दे सकता हूँ तो मुझे देनी चाहिए। जो कुछ मैं अपने आप के लिए सोचता हूँ वही सोचता हूँ कि मैं क्लाइंट को भी डिलीवर करूँ। बहुत अच्छी सोच है। नासिर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जो नए नौजवान आते हैं, अब रोज़ उनसे मुलाकात आपकी होती है, तो उन जब रियल एस्टेट में आते हैं तो उनके स्टार्ट में किस किस्म के सवालात होते हैं, थोड़ा सा वो तो हमें बताइए। फैसल भाई, सबसे पहले उबैर भाई का जो प्रोजेक्ट है फार्म हाउस का, बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। और मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 3 कैटेगरीज के अंदर लोग जो है वो अपना घर बनाते हैं। एक वो लोग हैं जो वर्टिकल आपकी बिल्डिंग्स के अंदर कोई अपार्टमेंट कोई बंदा परचेज करके वो वहाँ पे रहना चाहता है। कुछ लोग होते हैं जो घर बनाते हैं अपने लिए प्रॉपर, वो कहते हैं कि हमारा डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी घर होना चाहिए। और कुछ लोग हैं कि जो एक फार्म हाउस की लाइफ जो है वो नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो फार्म हाउसेस, बल्कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो फार्म हाउसेस के प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। लोग शहरी जो गुंजान आबादी है इससे जो है वो दूर थोड़ा सा जो है वो जानना चाहते हैं, और ये एक अच्छा इनका प्रोजेक्ट है फार्म हाउसेस का। और दूसरी आपने बात की कि जो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर नए लोग आ रहे हैं और उनके बहुत सारे सवालात होते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर क्या है या उसके अंदर कामयाबी के चांसेस क्या है। तो मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर थोड़ी मेहनत, ये बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर नहीं, आप किसी भी बिज़नेस के अंदर चले जाएं तो आपको स्टार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फैसल भाई, मुझे 20 साल का टाइम हो गया रियल एस्टेट सेक्टर को, और मैंने इस सेक्टर के अंदर पैसा कमाने से ज़्यादा मैंने इस सेक्टर को सीखा है। और आप यकीन करें कि रोज़ाना के हिसाब से इस सेक्टर के अंदर एक नया क्वेश्चन जो है वो आता है जिसके ऊपर हम लोग काम शुरू करते हैं और उसको सीखते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो डे फर्स्ट से ये माइंड लेके आते हैं कि हम लोग काम करेंगे, जब हमने तक सीखना नहीं है, हमने बस पैसा कमाना है, वो शॉर्टकट की तलाश में आते हैं। जब तक रियल एस्टेट का बूम है, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर काम करेंगे, और जब ये थोड़ा सा डाउन होगा तो हम लोग किसी और प्रोजेक्ट की तरफ चले जाएंगे या और बिजनेस। तो ऐसे लोग जो हैं वो कभी किसी भी बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं होते, चूँकि उनके अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती। बिल्कुल नासिर, मुस्तकिल मिजाजी जो है वो शर्त है कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए। तो अब बातों के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जो CDA के जारी मंसूबे हैं, ख़ासकर बात करेंगे जो शाहराहों के कुशादगी के मंसूबे हैं, वो शहरियों के लिए वबाल जान बन चुके हैं, क्योंकि ये मंसूबे ताख़ीर इनमें एक रूटीन बन चुकी है। और बहुत सारे मंसूबे ऐसे हैं जहां ट्रैफिक जैम जो है वो मामूल की बात बन चुकी है। घंटों का सफ़र जो मिनटों का सफ़र था वो घंटों पर मुहीत हो गया। अगर एक्सप्रेस वे की बात करें तो CDA ने जगह जगह शाहराह की कुशादगी का काम आगाज़ कर रखा है। PW इंटरचेंज 7 माह में इसने मुकम्मल होना था, लेकिन आज 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। 45 करोड़ रुपए का ये मंसूबा था, इसको नामुकम्मल ही खोल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों से ये सड़क बैठ भी चुकी है। इसके साथ साथ IGP प्रिंसिपल रोड की बात करें, इंटरचेंज का जो काम था अधूरा पड़ा हुआ है। इसी तरह मारगला रोड की अगर बात करें, जो काम था वो अधूरा पड़ा हुआ है। तो मेरे साथ जो मेहमान है उमैर सिद्दीकी साहब और नासिर गोंदल साहब, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि इस तरह के जब मंसूबे शुरू किए जाते हैं, ये मुकम्मल नहीं होते, तो शहरी और ख़ासकर एक कारोबारी जो तबका है वो कितना इससे मुतासर होता है? उमैर साहब आप बताइएगा।
سر جی جتنے بھی آپ نے یہ پروجیکٹس بتائے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ محکمانہ غفلت ہے، اور اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب تک آپ کو اپنے کام سے، جتنے بھی محکمے میں لوگ ہیں ان کو اپنے کام سے اپنی ڈیوٹی پوری طرح سر انجام نہیں دیں گے تو اس طرح کے وبال جان شہریوں کے لیے بنے رہیں گے. آپ دیکھیں یہ جو مین ایکسپریس وے ہے بڑا شاہراہ ہے، اتنی ٹریفک ہے، پورے پاکستان کو کنیکٹ کرتا ہے اسلام آباد، اس کے باوجود اس کو شروع تو کر دیا گیا ہے، کب ختم ہوگا؟ آپ اس حوالے سے آپ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ایون سی ڈی او کام بتانے سے کتراتے ہیں؟ سر جب تک جس شرح پہ وی آئی پی نقل و حرکت نہیں ہوگی وہ شرح ڈیلیز کا ہی شکار رہے گی اس جگہ پر، کیونکہ عام عوام جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے ڈیلے ہے، ورنہ ادروائز جتنے پروجیکٹس آپ کا یہ راول لیک کے اوپر جو پروجیکٹ تھا وہ ٹائملی ختم ہوا، تو اس پہ کیونکہ وی آئی پی نقل و حرکت تھی، اس ٹرینڈ کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے کہ وی آئی پی اور جتنے بھی کام ہیں، کیونکہ ہر کام کا ایک الگ ٹینڈر ہوتا ہے، تو جو بھی کمپنیز لیتی ہیں ان کو فالو اپ صحیح نہیں کریں گے، محکمانہ حکومت جو ہے وہ محکمانہ طور پہ کارروائی نہیں کرے گی ان کے خلاف، تو یہ اسی طرح کا ڈیلے ہمیں ہمیشہ نظر آتا رہے گا. ناصر صاحب آپ بتائیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں یہ بلکہ پریکٹیکلی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ایک نہیں دو اسلام آباد جہاں وی وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہیں وہاں جو منصوبے شروع کیے جاتے ہیں وہ راتوں رات مکمل ہو جاتے ہیں، جہاں یہ وی وی آئی پی جو موومنٹ نہیں ہوتی شہر سے تھوڑا باہر جاتے ہیں، کوئی چیز شروع کر دی جاتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو یہ کیا دوہرا معیار یہاں کیوں آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں فیصل بھائی، پاکستان کے اندر دو کیٹیگریز کے اندر اس وقت آپ کا قانون بھی ہے، بلکہ ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ دو کیٹیگریز کے اندر ہیں، ایک عام شہری کی ہے اور ایک وی آئی پی لوگوں کی ہے. اور وی آئی پی لوگوں میں جو ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے والے لوگ، وی آئی پی سے مراد جتنے بھی ہمارے حکومتی بڑے عہدیدار ہیں، جتنے آپ کے سیاستدان ہیں، یہ سارے جو ہیں ان کا ایک الگ پاکستان ہے، باقی عوام کا ایک الگ پاکستان ہے. اور باقی آپ نے بات کی سی ڈی اے کے جو پروجیکٹس ہیں، میں سمجھتا ہوں اس وقت سی ڈی اے یا اس طرح کے جتنے بھی ادارے ان میں اتنی زیادہ کرپشن ہو رہی ہے، اور نئے لوگ جو ہیں وہ اس ادارے کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی منصوبہ شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ کام شروع نہیں کیا جاتا، اس کی پلاننگ نہیں کی جاتی. ناصر صاحب یہاں آپ نے بات کی نااہل لوگوں کی، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس جو پروجیکٹ ہے موقف لینے کے لیے کوئی درجنوں بار ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار جی ہم مصروف ہیں، ہم بات نہیں کرنا چاہتے، چیئرمین صاحب بات کریں گے، پی آر ڈپارٹمنٹ بات کرے گا، جو ایک میڈیا کو اس حوالے سے آگاہی نہیں دینا چاہتے، عام عوام کے ساتھ وہ کیسا رویہ اپناتے ہوں گے؟ دیکھیں اس وقت سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ ایک جو افسر جو بڑی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں عوام کا خادم ہوں، میں عوام کے جو پیسہ آ رہا ہے، جو ٹیکس آ رہا ہے اس سے میں پے لے رہا ہوں، یا جو چائے پی رہا ہوں یہ عوام کے ٹیکس سے پی رہا ہوں، اور وہ وہاں پہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم لوگ اس ایریا کے مالک ہیں اور یہ جو باقی عوام ہے یہ ہماری رعایا ہے اور ہم نے فیصلہ کرنا ہے اور ان کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. حالانکہ وہ افسر جو ہیں وہ پاکستان کے پاکستانی عوام کے خادم ہوتے ہیں، انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے اور اس کام کی وہ پے لیتے ہیں. ناصر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بالکل آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ عوام کے ٹیکس سے ان کی تنخواہیں جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کسی کو جواب دیں گے یا آگاہ کریں گے تو ان کی کوئی شان میں گستاخی ہوگی، بلکہ ایک عام عوام کا جو ہے اس میں فائدہ ہوگا. پروگرام کے آخر میں عمیر صاحب میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، جو ایک آپ میسیج کوئی دینا چاہیں خاص کر نوجوان نسل کو کہ کسی بھی کاروبار کو آغاز کرنے کے لیے کون سی وہ چیزیں جن کو اپنانا ضروری ہیں؟ سر ینگسٹرس کو میں یہی میسیج دوں گا کہ جو بھی کاروبار کریں اس کو آپ کا پیشن ہونا چاہیے، آپ کا جنون ہونا چاہیے. دوسرا کہ اپنی کمیونٹی جو اس کاروبار کے حوالے سے ہمیشہ پازیٹیو رکھیں. اگر آپ پازیٹیو لوگوں میں بیٹھیں گے، پازیٹیو دوستوں میں بیٹھیں گے تو آپ چارج رہیں گے، اور اس میں پھر آپ کو یہ نیگیٹو جو سوچیں ہیں کہ کاروبار نہیں ہے وہ آپ کے اندر سے نکل جائیں گی. تو ہماری بھی اسی طرح، میری بھی جس وقت میں ڈاؤن گوندل صاحب اور ہمارے 7-8 دوستوں کا گروپ ہے تو ہم آپس میں بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے پازیٹیو باتیں کر کے، اور ملک کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے، ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، پراپرٹی جتنی بھی پازیٹیو باتیں وہ کر تو اپنے آپ کو چارجنگ لے لیتے ہیں، اور پھر مارکیٹ میں دوبارہ نئے عزم، نئے پرجوش طریقے سے آتے ہیں. ہر روز ایک نئے دن سے ایک پازیٹیو ویوز کے ساتھ، پازیٹیو سوچ کے ساتھ کاروبار کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین پروگرام میں آج کی ہم نے بات کی مختلف مسائل پہ، اور خاص کر کوئی بھی بزنس آغاز کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ نوجوان نسل کو یہ بتائیں کہ جب تک آپ کسی بھی کام کا آغاز کریں گے محنت اور لگن کے ساتھ، اور پھر اس کو آپ اپنا پیشن نہیں بنائیں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ایک آئندہ ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.